डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने दूसरे लेक्चर की तरफ बात करेंगे और इसका टॉपिक है द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। हमारा कोर्स जो है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है और कोड PHY 323 है। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर इवनिंग प्रोग्राम सेक्शन ए स्प्रिंग 2020 and myself Mohammad Ishan Jacob, lecturer in physics, Government College University Faisalabad. In the last lecture, we talked about what is electronics, basic parts of electronics, electrical sources, electronic materials, electronic components, current need of the society, vacuum technology, and the solid state technology, and how these technologies are able to transform the present era of our technology. So, in this lecture, we will talk about what are electronic materials. इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स क्या होते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे. Then we will compute the electronic conductivity of the material. There is some specific property of the material which is able to conduct the electricity and it is called the electronic conductivity. तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बात करेंगे. After computing this electronic conductivity, we can differentiate between three types of the materials. Just like we have here insulators, we have conductors, we have semiconductors. After have a vast differentiation between insulator, conductor and semiconductor on the basis of electronic conductivity, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक उसके ऊपर बात करेंगे और वो है ट्यूनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, कि हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी को क्या ट्यून कर सकते हैं. ट्यून मीन कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ द एनी मटेरियल बाय the aid of some other methods and as well as any other solutions. So keep in view, and after that we will study the microscopic view of the materials. Every material is made up of atoms and we will discuss about what is happening at the bottom of the materials which is responsible for different types of electrical and electronic behaviors. The most important to understand the basics of materials on the basis of atoms, it's basically based on the band theory and specially designed for the solids. तो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि ये किस तरह से किया जा सकता है. After that, we will discuss about the band diagrams and the classification of the materials, कि हम band diagrams के ऊपर बात करेंगे और उनकी बुनियाद पे हम किस तरह से materials को classify कर सकते हैं. We will talk about these things. So let's start with the electronic material. The material which is capable of electronic properties are known as electronic material. It's a very simple definition. Actually, अगर आप ये समझें कि कोई ऐसा मटेरियल जिसके अंदर आप इजीली करंट को गुजार सकते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल कह सकते हैं. Material can be categorized to the three ways on the basis of electronic properties. जस्ट लाइक कि अगर आप चाहते हैं स्टडी करना कि ये मटेरियल जो है इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, सो देयर इज अ सिंपल थिंग कि आप इन इलेक्ट्रॉन्स को, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम यहाँ से यहाँ पास करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, जस्ट लाइक दिस वे. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं देन इट्स मीनिंग दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल. और इसको हमने तीन कैटेगरीज बनाई हैं. कुछ ऐसे मटेरियल होंगे just like the first one conductors, जिनमें से ये इलेक्ट्रॉन इजीली पास आउट हो सकते हैं और हम उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर आर गुड कंडक्टर्स. ऑन कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिनमें से ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही पास नहीं कर सकते और बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो नहीं कर सकते, एंड दीज आर कॉल्ड द इंसुलेटर्स. जस्ट लाइक रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राईवुड, ये सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं. इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती. हालांकि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के दरमियान में लाए करते हैं. दीज आर कॉल्ड द सेमीकंडक्टर्स, or these are called semiconductors. For example, we have germanium, carbon, silicon, strontium, sorry,
it's selenium, and we have here gallium arsenide, etc. So we have, these are the just the materials, these are the compound. So we have different types of these ones. Now electronic conductivity of the material क्या होती है, हम इसके ऊपर बात करें. फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंडक्टर, वी हैव अ सॉरी मटेरियल, और उसका हमने एक वॉल्यूमेट्रिक शेप के अंदर उसको ले लिया है, और एक इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल, और ये उसकी लेंथ है. सो द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू AL. तो ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा. अगर हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो किस तरह से कंप्यूट की जा सकती है, बहुत ही सिंपल मेथड है. आप इस मटेरियल की जो हमने ट्यूब ली है, जो फील्ड ट्यूब है, और इसके साथ अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली अगर ये एक अच्छा मटेरियल कंडक्टर होगा तो इसमें से करंट गुजरेगा, अगर अच्छा कंडक्टर नहीं होगा तो ये करंट नहीं गुजरेगा. तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. हमने इसके साथ अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस और हमने देखा तो ये करंट इसमें से पास आउट होना शुरू हो गया. तो इट्स मीन इट्स अ कंडक्टर. अगर कोई मटेरियल कंडक्टर है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी भी होगी. अदरवाइज जैसा भी कोई मटेरियल हो तो उसकी कंडक्टिविटी होनी चाहिए, और वो उस लिहाज से कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है. सो हम चाहते हैं कि इस पूरे मटेरियल के अंदर कितनी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं. जिसके लिए बड़ा ही सिंपल और आसान तरीका है वो निकालने का, वो है जी, लेट्स स्टार्ट. कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर of length L and cross sectional area as depicted in the circuit diagram. जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, हमने एक वायर ली है, वायर सिलेंड्रिकल शेप में है, so that's इसकी एक लेंथ ले ली, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया है. हाँ, so according to the definition of the current, the conductivity can be computed as I is equal to Q over T. सब लोग जानते हैं अगर इसमें से अगर करंट गुजर रहा है so it's mean यहाँ पे I is equal to Q over T है, और उस लिहाज से Q और T की अगर हमें डेफिनेशन का अंदाजा है तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं. इट्स अ वेरी बेसिक एंड सिंपल इक्वेशन. Q जो है इट्स द चार्ज, टोटल चार्ज, एंड द T इज द टाइम. कौन सा टाइम, कि यहाँ से चार्जेस को इस दूसरे सेक्शन तक आते हुए कितना टाइम लगता है, ये वो वाला टाइम. सो where the time is required for the electron to pass through the whole material. इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कितने टाइम में पहुंचते हैं, ये वो टाइम है जी. एंड Q इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन द मटेरियल, और ये इसके बारे में मटेरियल्स के बारे में बता रहा है. सो टोटल चार्ज जो है, एक फंडामेंटल जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के तौर पे हम कंसीडर करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय n. n is stand for total number of electrons present in the material. So the total charge will be equal to Q is equal to NE हो जाएगा. तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी. जैसा कि हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं कि S is equal to होता है VT, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो साथ साथ ड्रिफ्ट भी करते हैं. जैसा कि आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो इसको अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मेरा उनके लिए ये सादा सा मशवरा है कि आप इनको यही समझें कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, और हम इसको v ड्रिफ्ट कह रहे हैं, इसके अंदर और कोई खास बात नहीं है. बट जिन्होंने इस टॉपिक को या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि ये वो वेलोसिटी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो डीएक्सेलरेट और एक्सेलरेट दोनों कार्य होते हैं, जिसके नतीजे में एक स्मूथ वेलोसिटी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो S इज इक्वल टू क्या होता है जी, VT का फॉर्मूला होता है. सो वी हैव हियर V इज रिप्लेस्ड बाय V ड्रिफ्ट, उसके हिसाब से मैंने रिप्लेस कर दिया. हमें यहाँ पे T की वैल्यू चाहिए, हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके यहाँ से T की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, और हमने ऐसा ही किया. एंड T बिकम्स L ओवर V ड्रिफ्ट. ये जो S है दैट इज द डिस्टेंस, कितना कवर होता है, और एक मटेरियल को जितना टाइम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ जाने में लगता है तो वो उतना ही फासला तय करते थे. तो हमने S डिस्टेंस को L कह दिया और L ओवर V ड्रिफ्ट लिख दिया. दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 और 3 को उठा के हमने किसमें पुट करना है जी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया, और हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू Q N E की वैल्यू
v ड्रिफ्ट ओवर l की फॉर्म में हमारी इक्वेशन नंबर 4 डेवलप हो जाए। इक्वेशन नंबर 4 हासिल करने के बाद एक सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ हम अपनी बात को आगे लेके चल सकते हैं। एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन एज v ड्रिफ्ट इज इक्वल टू म्यू नॉट e इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 जो है वो बिकम्स हो जाएगी हमारे पास इन दिस फॉर्म, जैसा कि आप जानते हैं। अगर v ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एक सिंपल रिलेशन यूज किया जी, दिस म्यू e इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, e अप्लाइड फील्ड है एंड v ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट e के हिसाब से है। सो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने के साथ ही हमारे पास जो है एन ई म्यू ई ओवर एल की फॉर्म में आपकी क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 बनने के साथ ही हमारे पास जो है करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे, तो फिर हमारे पास एक मौजूदा शक्ल आ जाएगी, दैट इज द करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। So J is stand for the current density and it is equal to I over A. By using equation number 5 we get, हमने यहाँ पे I की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है और ये ऑलरेडी है, तो हमें G की वैल्यू चाहिए, करंट डेंसिटी की चाहिए, तो हमारे पास वो आ जाएगी। तो जैसा कि हमने यहाँ से I की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास J की वैल्यू आ गई है और N E म्यू E इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर AL अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट दैट कि दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो जिस वायर में से हमारा करंट गुजर रहा है ये उसका क्या है, वॉल्यूम है, और उस करंट की जो करंट डेंसिटी है उस वायर की वो ये है, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन जो है वो बिकम्स हो जाती है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ओम लॉ की हमने यूज की, J इज इक्वल टू सिग्मा E की फॉर्म में, तो दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम लॉ, और इनको कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करने से हम इसकी कंडक्टिविटी, दिस सिग्मा इज बेसिकली द कंडक्टिविटी एंड दिस इज द अप्लाइड फील्ड एंड J इज द करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को कंपेयर करके सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड दिस इज द आवर मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक। तो सर दैट्स इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी जो है वो सिग्मा निकाली जा सकती है, वेरी सिंपल। आप जब इनको कंपेयर करेंगे तो AL ये वाले इससे रह जाएंगे, E और E कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू N E म्यू E AL। AL स्टैंड फॉर द वॉल्यूम and mu E mobility of the electrons, charge of the electron, magnitude of the charge electron, वैसे नेगेटिव होती है but we have taken the positive, जो ये बता रहा है कि we are taking just the magnitude and n is the total number of the electrons। so ये equations हमारे पास कंडक्टिविटी का, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल का फार्मूला आ जाएगा। इस फार्मूले को हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो नया शक्ल है इस फार्मूले की वो ये बनाई जा सकती है जिसके अंदर स्मॉल n है, E है और म्यू E है, दोनों चीजें वही हैं, सिर्फ हमने इस दो फैक्टर्स को आपस में रिप्लेस किया है और उसको हमने स्मॉल n कह दिया। स्मॉल n से मुराद होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम यू डिफाइन करते हैं n इज इक्वल टू n ओवर AL, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसको आमतौर पे हम n को नंबर डेंसिटी भी कहा जाता है और चार्ज कंसंट्रेशन वगैरह भी कहा जा सकता है। तो इट्स अ सिंपल फार्मूला। इस फार्मूले की निस्बत से हम क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी हमने निकाली है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। आइए, किसी भी मटेरियल की के बारे में जानने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उसकी कि कितना करंट वो गुजार सकता है, कितना करंट नहीं गुजार सकता, वो एक फैक्टर पे डिपेंड करेगा एंड दिस फैक्टर इज नोन एज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है ये बजाते खुद किस पे डिपेंड करती है, आगे तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, n पे, E पे एंड म्यू E। सो जो n है दैट इज कॉल्ड द चार्ज डेंसिटी और चार्ज कंसंट्रेशन, कुछ लोग इसको नंबर डेंसिटी भी कहते हैं। सो वी हैव ए चार्ज डेंसिटी एंड द चार्ज कंसंट्रेशन, मीन टू से किसी पूरी वायर के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल है हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। सिमिलरली इट्स डिपेंड्स अपॉन E, E स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉन चार्ज वैल्यू,
एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की क्या वैल्यू हो सकती है, ये वो वैल्यू है। एंड द थर्ड वन इज द मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस। यहाँ पे E लिखा गया है तो इट स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कितनी है, मोबाइल कितने हैं, वो मुतहर्रिक कितने हैं, इन तीन फैक्टर्स के ऊपर बात को कंडक्टिविटी जो है वो किसी भी मटेरियल की डिपेंड करती है, चार्ज डेंसिटी पे, इलेक्ट्रॉन चार्ज वैल्यू पे एंड मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस के ऊपर। सो मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस और ये सारे फैक्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी वगैरह बनाते हैं। और जाहिर बात है हर तरह के मटेरियल के अंदर एक जैसी कंडक्टिविटी नहीं होती, तो इस लिहाज से हर एक की जो कंडक्टिविटी है विद द मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। और ये कंडक्टिविटी का कुछ ऑर्डर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है 10⁻⁻18 से लेकर 10⁻+18 तक जा रहा है। और यूं कंडक्टिविटी जो है मटेरियल की चेंज होती रहती है। माइनस से मुराद है कम वैल्यूज हैं, और जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि वैल्यूज बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ये पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। तो एक कॉमन सेंस की बात यह है कि नेगेटिव वैल्यूज जो है वो कम चीज को बता रही हैं और पॉजिटिव वैल्यूज ज्यादा को। तो अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है वो तकरीबन 0 है, और यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम है 10⁸ के, लाखों के हिसाब से बल्कि करोड़ों के हिसाब से ये लिखी जा सकती है। सो इट्स मीन ये वाला हिस्सा जहाँ पे कंडक्टिविटी जो है वो ना होने के बराबर होती है, दैट इज कॉल्ड द इंसुलेटिंग। ये वाला हिस्सा जहाँ पे कंडक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा होती है, हजारों लाखों के हिसाब से हो जाती है, हम उसको कंडक्टर्स कहते हैं। कुछ ऐसा हिस्सा है जो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बिल्कुल दरमियान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस हिस्से के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ही थोड़ी है, बट कदरे ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इंसुलेटर, हम इसको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। और यूं हम इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके अंदर इसने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे कैडमियम सल्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनकी कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। फिर फर्दर हम आगे से शिफ्ट होते जाते हैं, जबकि ग्लास, मेटल, डायमंड, सल्फर, फ्यूज, क्वार्ट्ज जो इनकी कंडक्टिविटी जो है वो कम होती होती जा रही है। जबकि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम और ये बिस्मथ है, इनकी कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। उस लिहाज से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इस फिगर के ऊपर वाले हिस्से को देखें तो हमने यहाँ पे रेजिस्टिविटी के बारे में भी बात की हुई है। अगर यहाँ पे देखें तो कंडक्टिविटी का यूनिट सीमन पर सेंटीमीटर था, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। कंडक्टिविटी का जो उल्ट होता है वो कहलाता है जी रेजिस्टिविटी, और इसको हम सिग्मा से जाहिर करते थे और इसको हम रो से जाहिर करते हैं, और इसका यूनिट होता है ओम पर सेंटीमीटर। सो कंडक्टिविटी जैसा कि उल्ट है रेजिस्टिविटी का, तो इसका मतलब है कि ये वाले जो फैक्टर हैं अगर यहाँ पे माइनस फॉर्म में है तो ये क्या होना चाहिए, प्लस में, जैसा कि दिखाया गया है। तो ये प्लस में बन जाते हैं और ये माइनस में हो जाते हैं। तो कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को हम यूं भी एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी ना होने के बराबर होती है वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल जो बिल्कुल इनके बिटवीन होते हैं, दे आर कॉल्ड द सेमीकंडक्टर्स। तो हम इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इन दी नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है ट्यूनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी के। जो है इलेक्ट्रॉनिक हमने मान पढ़ लिया, कंडक्टिविटी होती है ये इस फार्मूले से निकाली जा सकती है। इस फार्मूले के तीन हिस्से हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन चार्ज वैल्यू के हिसाब से एंड चार्ज कंसंट्रेशन के हिसाब से। अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमने अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमने इन तीनों में से किसी वैल्यू को बढ़ाएंगे ताकि ये कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो ओवरऑल तौर पे बढ़ जाए, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बड़ा आसान तरीका है, लेट्स टॉक विद दैट। क्या हम मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं? मोबिलिटी जो है इट स्टैंड फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द चार्जेस। रिस्पॉन्स जो है वो चार्जेस का वो बढ़ाया या कम किया जा सकता है बाय यूजिंग अ सिंगल टेक्निक एंड इट इज कॉल्ड द थर्मल ट्रीटमेंट। या दूसरे अल्फाज में कहें तो हम हीट ट्रीटमेंट या फिर टेम्परेचर इफेक्ट्स के साथ किसी चार्जेस के स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन द सेम वे तो तीसरा फैक्टर है वो चार्ज की वैल्यू है। क्या हम चार्ज की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं? फंडामेंटल वैल्यू जो चार्ज की 1.6 × 10⁻⁹ कूलम,
तो हम इसको नहीं बढ़ा सकते, सो डेट फाई नॉट पॉसिबल वे। ये बढ़ाया जा सकता है, ये नहीं बढ़ाया जा सकता। सो सिर्फ एक तीसरा जो है वो चार्ज कंसंट्रेशन है। क्या हम चार्ज कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं? यस, हम चार्ज कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, पर इसके लिए हमें मिक्सिंग करना पड़ेगी। किसी और जगह से हमें चार्ज को ले जाके उस मटेरियल में ऐड करना पड़ेगा। तो चार्ज कंसंट्रेशन जो है वो एक टेक्निक से बढ़ाया जा सकते हैं। इट इज कॉल्ड द डोपिंग या इम्प्योरिटी एडिंग टेक्निक, जिसके अंदर बाहर से हम चीज़ों को ऐड करते हैं ताकि इसके अंदर हम चार्ज की वैल्यू को बढ़ा सकें। तो इस तरीके से हम ट्यूनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी के अंदर जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो दो हैं। वो पहला है जी थर्मल ट्रीटमेंट के जरिए से, और तीसरा जो मेथड है, दूसरा जो मेथड है वो है चार्ज कंसंट्रेशन, डोपिंग और इम्प्योरिटी के साथ। तो आइए देखें कि हम जिस चार्ज कंडक्टिविटी को निकाल रहे थे और हम जिस मटेरियल के बारे में स्टडी कर रहे थे कि वो इलेक्ट्रॉनिक कैसे होता है, उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू कैसा है। आप जानते हैं जो भी शय हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है उन सब का जो मेन फंडामेंटल पार्ट है दैट इज द एटम। तो हर मटेरियल जो है वो किससे मिलकर बना जी? एटम से। तो ये डिफरेंट एटम्स की हम स्ट्रक्चर को सपोज कर सकते हैं कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर्ड मटेरियल के अंदर, सॉलिड्स के अंदर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ एटम्स पड़े होते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो एक एटम कैसा लगता है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि एक एटम है और उसके अंदर बुनियादी तौर पे एक न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर मुश्तमिल होता है, और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और एक एटम जो है वो इस पूरी साख्त के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये उस एटम की टाइप के लिहाज से चेंज होते रहते हैं और उसके एटॉमिक नंबर के लिहाज से ये बदलते रहेंगे। अगर हम इसी अरेंजमेंट को देखें कि ये कैसे लग रही है, तो आप देख सकते हैं कि एक एटम जो है बुनियादी तौर पे एक नहीं है, बल्कि इसके अंदर पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि सॉलिड्स में ये कैसा आ रहा है, वी कैन आल्सो फिगर आउट दैट कि ये एक्चुअली एक दूसरे के साथ इस तरह से पर्टिकुलरली अरेंज वे के अंदर होते हैं। अगर ये ऐसे अरेंज वे के अंदर होते हैं तो जब एक एटम दूसरे एटम के करीब आता है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखते हैं, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरेक्शन करते हैं जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है? यस, ऐसा होता है, इंटरेक्शन होती हैं। इंटरेक्शन होने की वजह से ये जो हमें डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल के बारे में बताते हैं कि एनर्जी लेवल कैसे है। अगर देखा जाए तो ये एनर्जी लेवल जो है ये पहले की निस्बत अब क्या हो रहा है, जो शिफ्टेड हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को रिपेल भी कर रहा है, साथ में ये नेगेटिव अब इसके पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन भी कर रहा है, और इसी तरह ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ भी अट्रैक्शन करेगा इन द सेम वे इसी एटम के साथ इस एटम। तो इसका मतलब जब एक एटम के गिर्द नेबरिंग एटम्स आ जाते हैं तो उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं, और इस स्प्लिटिंग की वजह से बैंड्स फॉर्म होना शुरू होते हैं। एक सिंगल पाथ जो आपको नजर आ रहा था वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए था, बट अब ये इलेक्ट्रॉन जो है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर से भी अट्रैक्ट किया जा रहा है और इधर से भी, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इधर से भी अट्रैक्ट किया जा रहा है और इधर से भी। तो ये शिफ्ट हो जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से और कहीं दरमियान पे आके रुक जाएगा, इन द सेम सॉरी स्टैंड करेगा और इधर रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। सो ड्यू टू दिस रीजन वी हैव हियर स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी लेवल्स, एंड वो एनर्जी लेवल जो है सिर्फ दो नेबरिंग एटम की वजह से सिर्फ दो एनर्जी लेवल बने हैं। तो अगर n एटम्स होंगे तो ये कैसे बन जाएंगे जी? ये बैंड्स की फॉर्म में शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तो जिस तरह हमारे पास ये इनर शेल आमतौर पे इनर एनर्जी लेवल समझा जाता है और ये आउटर एनर्जी लेवल समझा जाता है, और इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स और दे आर कॉल्ड द इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनका एक दूसरा नाम भी है, हम इसको आमतौर पे कंप्लीट शेल वाला इलेक्ट्रॉन भी कहा जा सकता है, कंप्लीट शेल है और उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम कंप्लीट शेल इलेक्ट्रॉन्स कहा जा सकता है। इन द सेम वे ये जो बाहर वाला शेल है इसको हम आमतौर पे वैलेंस शेल कहते हैं या वैलेंस एनर्जी लेवल कहते हैं। तो इनके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये दो बातों से हम अपनी बात को बढ़ाते हैं, और
और ये जो स्प्लिटेड एनर्जी लेवल से वो बैंड्स की फॉर्मेशन में आ जाते हैं, और हमारे पास जो है वो सबसे पहले फील्ड बैंड बनते हैं। फील्ड बैंड वो होते हैं कि जिसके अंदर इनर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आते हैं, और ये वो बैंड होता है जो कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल के। इन द सेम वैलेंस बैंड वो होता है जो कंसिस्ट करता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मीन टू से बाहर वाला हिस्सा। ये अंदर वाला बैंड है, बाहर वाला बैंड है। और कुछ ऐसे सिस्टम भी हो सकते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो हम उसको कहते हैं जी कंडक्शन बैंड, और ये वो बैंड होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मौजूद होते हैं। और इस तरह से हम अपने सॉलिड्स को एटम्स के साथ, फिर एटम्स को बैंड्स के साथ रिप्लेस करके स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो बैंड डायग्राम और मटेरियल जो है वो यही चीज वाज़ेह करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हमारे जो एटम सॉरी मटेरियल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से, और उनके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम हमें ये समझने में मदद देती है। आइए सबसे पहले हम कंडक्टर की बात करते हैं, जो सबसे आसान और इजी है। अगर इस शक्ल को आप गौर से देखें तो ये बताया जा सकता है कि वाई एक्सिस पे एनर्जी है, और एक्स एक्सिस जो है वो हमें पोजीशन के बारे में बता रहा है। हालांकि यहाँ पे शो नहीं की गई, बट ये पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की अपना न्यूक्लियस के हिसाब से। सो अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैलेंस बैंड है, ये नीचे वाले फील्ड बैंड है जिसका हमारे पास कंसर्न नहीं होता। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दो ही चीजें अहम है कि क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस से फ्री और फ्री से वैलेंस में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। ये जो ब्लू वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि कंडक्टर जो है उनके अंदर वैलेंस और कंडक्शन के अंदर कोई फर्क नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर और इधर से उधर जा सकते हैं इजीली, तो इसलिए इनके दरमियान किसी किस्म का गैप नहीं है, जैसा कि यहाँ और यहाँ दिखाया गया है। कंडक्टर जो है हैव जीरो बैंड गैप, पहली बात। दूसरी बात, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप किया हुआ है, इनका एक्सचेंज हो सकते हैं। फिर तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव फ्रॉम वैलेंस टू बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो ये इस फिगर से हम ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंसुलेटर। इस कंडक्टर और इस इंसुलेटर वाली डायग्राम का कंपैरिजन कीजिएगा तो आप देखेंगे सबसे पहले कि इनके दरमियान और इस कंडक्शन बैंड के दरमियान एक बहुत ज्यादा गैप, बैंड गैप मौजूद है। इसके एनर्जी का डिफरेंस है इनके दरमियान, तो इसलिए आमतौर पे हम इसको एनर्जी बैंड गैप कहा जाता है। तो इनके दरमियान बहुत ज्यादा मौजूद है, ये पहला फर्क है। दूसरा फर्क ये है कि इसके अंदर किसी किस्म के ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम शो करवाने के लिए था कोई भी नहीं, और जबकि वैलेंस बैंड के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इसका मतलब कंडक्शन बैंड इनका क्या होता है, खाली होता है, ठीक है जी। तो हम बता सकते हैं कि है वेरी लार्ज बैंड गैप। इसी तरह वैलेंस बैंड कंडक्शन डू नॉट ओवरलैप, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव फ्रॉम बैलेंस टू बैंड टू कंडक्शन बैंड, एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। इनका कंडक्शन बैंड क्या है जी, एम्प्टी है। नहीं जी, अब कंडक्टर्स भी हैं, इंसुलेटर्स भी हमने पढ़ लिए। जो हमारा जो तीसरा है वो है सेमीकंडक्टर्स के बाद। अगर आप सेमीकंडक्टर्स को जरा गौर से देखें तो वो कुछ प्रॉपर्टीज कंडक्टर की रख रहे हैं और कुछ प्रॉपर्टीज इंसुलेटर्स की रख रहे हैं। जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनका जो बैंड गैप है वो इंसुलेटर की निस्बत बहुत थोड़ा है, नैरो है, कम है, और इनके कंडक्शन बैंड के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल इंसुलेटर के केस से मुख्तलिफ है। सेमीकंडक्टर जो है नैरो बैंड गैप, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड do not overlap, electron can easily move from valence band to conduction band by the aid of external energy। कि हम इसको अगर एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इवन एट रूम टेम्परेचर, तो इनके दरमियान ये रूम टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके यहाँ से जंप कर सकता है, ठीक है।
इस वेन डायग्राम्स के जरिए से हम माइक्रोस्कोपिकली बता सकते हैं कि क्यों जो है इंसुलेटर्स अच्छे कंडक्टर नहीं होते, क्यों कंडक्टर जो है वो अच्छे जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, और जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो क्यों जो है वो थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद यूं मूव कर सकते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह चार्जेस वगैरह। तो इसके ऊपर हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने जो बातें आज स्टडी की हैं वो बहुत सिंपल और सादा थी। हम उसको अगर देखना चाहे तो वो है, इन दिस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, हाउ टू कंप्यूट द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स. So we also discussed about the energy band theory of the solid and studied the energy band diagram which differentiate the conductor, insulator and semiconductor. हालांकि ये जो बातें आज अभी लेक्चर के दौरान की गई हैं वो बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक्स हैं, क्योंकि आप लोगों की डायरेक्ट फील्ड फिजिक्स नहीं है, इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हम बीच में बहुत सादा तरीके से कर गए हैं और लूजली स्पीक कर रहे थे चीज़ों को। हालांकि कंडक्टर्स जो है वो भी अपने अंदर दो टाइप्स रखते हैं, तो एक ऑर्डिनरी कंडक्टर्स है जो हमें नज़र आते हैं और एक है हमारे पास सुपर कंडक्टर्स जिनके ऊपर हम लोग आजकल रिसर्च कर रहे हैं, बल्कि अरसा दराज से रिसर्च करते आ रहे हैं। और सुपर कंडक्टर्स के बारे में है कि इनकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाती है ख़ास पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जाके, और वो जो है एक बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। इसी तरह बहुत सारे मटेरियल्स और भी मौजूद होते हैं जिसका हमने इस लेक्चर के अंदर जिक्र नहीं किया, बट आई होप कि आपको जो है वो लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी सारी टॉपिक से रिलेटेड। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, व्हाई वी प्रेफर सेमीकंडक्टर, ट्यूनेबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिफाइन फैब्रिकेशन बाय सेमीकंडक्टर्स। तो इन मेन बातों के ऊपर इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात होगी। So any one of you have any question and answer तो लाजमी सवालात कीजिएगा। इस सवालात करने के लिए आप बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशन जो है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जूम मीटिंग करेंगे आपस में, और व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से भी आप पूछ सकते हैं, या फिर जो यूट्यूब का लिंक आपको प्रोवाइड किया उसके कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये बात और ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। किसी किस्म का भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंडिंग के हवाले से तो वो लाजमी शेयर भी कीजिएगा, पूछिएगा भी, और ताकि हमें छोटे छोटे जो मसले मसाइल हैं हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।